I hope that all of you are safe and sound. Today we will start our new topic, that is computer network models. अब कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स के बारे में यहाँ पर हम डिटेल डिस्कस करेंगे. बिफोर दिस वी स्टडीड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम, that were message, sender, receiver, medium and transmission. All these components through which we can do a communication, we can create a communication link for any system. Today we will discuss about the computer network models. Models means that there are different layers, or you may say that there is a communication process which is carried out in different layers. Different layers में आपकी working हो रही होती है. हमें ये by default naturally we can't see them. हम इन्हें देख नहीं सकते कि कौन सी लेयर क्या काम कर रही है, मगर ये अंदर जो वर्किंग हो रही होती है, जो आपका इंटरनेट पर आपका डाटा फ्लोट हो रहा होता है, डाटा आपका जा रहा है, आपके पास पहुंच रहा है, किस तरह आ रहा है, ये बैकएंड पे क्या वर्किंग हो रही होती है, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स में हम ये डिस्कस करेंगे. You can see a block diagram over here in a table 3.1. There are 5 basic network layers, or you can say that 5 network models. One is application layer, transport layer, network layer, data link layer and physical layer. अब ये 5 layers है, इनके बारे में हमने आज डिटेल डिस्कशन करनी है. Okay, start. The whole communication process is carried out in different layers, where each layer performs one or more specific task. Now what they are saying can perform one or more specific task. हर layer का अपना एक अलग काम हो सकता है, एक काम भी हो सकता है और एक से ज्यादा काम भी हो सकते हैं, मगर वो लेयर अपने उस काम पे डिपेंड करेगी. वो काम होगा तो नेक्स्ट लेयर पर डाटा ट्रांसफर होगा. अगर वहीं पर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो आगे आपका डाटा ट्रांसफर नहीं होगा. Okay. The internet also uses a layered communication called the transmission control protocol or internet protocol, TCP/IP model. अब ये TCP/IP का वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुना होगा. इंटरनेट जो कम्युनिकेशन मॉडल को, एक लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल को फॉलो करता है या यूज करता है, उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज TCP और IP. और TCP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल. मतलब इंटरनेट जिस प्रोटोकॉल को यूज करता है या इंटरनेट जिस लेयर को कम्युनिकेशन मॉडल को यूज करता है, उसको हम कहते हैं TCP और IP. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. The TCP/IP is a suite of protocols that provides end-to-end connectivity between devices. अब इस प्रोटोकॉल से क्या होता है, TCP/IP प्रोटोकॉल क्या प्रोवाइड करता है आपको, इसके थ्रू आप डिफरेंट डिवाइसेस से एंड टू एंड कनेक्टेड हो जाते हो. मतलब आप साथ साथ कनेक्ट हो गए हो बिल्कुल. मतलब आज जितनी डिवाइसेस आपकी अगर उस नेटवर्क पर हैं, प्रेजेंट है, और आपकी कम्युनिकेशन आपस में हुई भी है, तो आप अपने डाटा एक दूसरे से ट्रांसफर कर सकते हो. It consists of 5 layers as shown in table 3.1. आप देख सकते हैं यहाँ पे there are 5 layers in a communication network model. The concept of layering can be explained with post office example. Suppose you are in Lahore and you want to write a letter to your friend in Islamabad. After writing the letter, you insert it in an envelope, write address of your friend on it and drop it in a mailbox. As there may be many people living at the same address, so you write the name of your friend on the envelope. Your nearest post office takes the letter to General Post Office in Lahore, where it sends the same to General Post Office in Islamabad. Ultimately, the letter reaches at the address and then to your friend. Then he or she can read the message and write a reply. Here we relate this example with a layered network model of TCP/IP. Assume that two persons are chatting using a computer network. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि we will explain the detailed concept about computer network model through a simple example, that is an example of a post office. Simple post office की example वो दे रहे हैं यहाँ पे. They are saying that you are in Lahore and you want to write a letter to your friend in Islamabad. आप लाहौर में और आपका जो friend है वो इस्लामाबाद में, आपने उसे एक letter लिखना है. तो what you will do, you will simply write a letter and you will write that you will put that letter in an envelope. And what is the basic requirement that the letter will go to your friend is that you need to write the address. You have to write the address होगा तो वो letter उस तक पहुंच पाएगा. So simply you insert the letter in an envelope and writes the address of your friend and drops it in a mailbox, और आप उसे mailbox में डालोगे.
since there may be many people living at that house, so you see, that is why you have to write the name of your friend कि जिसका letter है उसी तक पहुंचे. ये ना हो कि different लोग अगर रहते हैं तो कोई उस letter को open कर ले या receive कर ले. So simply you takes that letter to your nearest post office, and the post office will take that letter to the general post office. मतलब different areas में छोटे छोटे post office होते हैं, वो जितने letters इकट्ठे हो जाते हैं वो सारे letters को लेकर आपका जो general post office है कचहरी के पास, यहाँ पर वो ले जाते हैं, जहाँ पर मेन आपका ये पोस्ट ऑफिस है, जहाँ से सारी मेल्स जो है वो ट्रांसफर की जाती हैं या डॉक्यूमेंट्स भेजी जाती हैं, वहां पर चले जाएगा. सिंपली तो लाहौर वाले का जो जनरल पोस्ट ऑफिस है वो क्या करेंगे कि आपका जो इस्लामाबाद का जनरल पोस्ट ऑफिस है वहां पर आपका लेटर ट्रांसफर कर देंगे, वहां पर पहुंच जाएगा, एंड अल्टीमेटली योर लेटर विल रीच टू द एड्रेस एंड देन टू योर फ्रेंड. तो वहां से जो जनरल पोस्ट ऑफिस होगा इस्लामाबाद का, वो अब डिफरेंट जोन्स में डिफरेंट पोस्ट ऑफिस होंगे, उधर से करीब जहां पर भी होगा वहां ट्रांसफर करेंगे, और अल्टीमेटली योर लेटर विल पास टू योर फ्रेंड. So then he or she can read the message and write a reply. Simple. अब बेसिकली बताने का मकसद यहाँ पर क्या है कि नेटवर्किंग में किस तरह से लेयरिंग के थ्रू आपका लेटर ट्रांसफर हुआ था. अब उसने एक जनरल लाइफ की एग्जांपल इसलिए दिया ताकि कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में आपको समझ आए कि इफ two persons are communicating with each and other through a network, then how the communication process takes place. अब you can see over here a table. अब टेबल उसने यहाँ पर बनाया हुआ है, एक तरफ उसने पोस्टल सिस्टम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ लेयर्ड नेटवर्क लिखा हुआ है. पोस्टल सिस्टम में जो उसने ऊपर आपको एग्जांपल दिया पोस्ट ऑफिस की, उसी एग्जांपल को उसने चंक्स में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द लेयर्ड नेटवर्क. अब लेयर्ड नेटवर्क में बेसिकली वो बता रहे हैं कि मेन आपकी जो कंप्यूटर नेटवर्किंग की लेयर्स हैं वो काम किस तरह कर रही हैं. ओके, सबसे पहले मैं पोस्टल सिस्टम को रीड आउट करूंगी. आफ्टर दैट आई विल रीड आउट द लेयर्ड नेटवर्क. Postal system. In writing a letter, you consider only writing proper message without concerning about the names of the post office staff who will handle the envelope. Moreover, you do not need to know the details of the mail delivery system. You simply put it in an envelope and write the street address. अब पोस्टल सिस्टम में वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिख लिया विदाउट कंसर्निंग अबाउट द नेम्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टाफ. आपको इससे कंसर्न नहीं है कि आपके जो पोस्ट ऑफिस में जो लोग होंगे उनके पास आपका लेटर जाएगा तो उनके नेम्स आपको पता होने चाहिए या उनके नेम्स आपको लिखने चाहिए, या जो कोई भी आपके एनवेलप को डील करेगा. यू आर नॉट कंसर्न विद एनी ऑफ देम. एंड यू ऑल्सो डू नॉट नो द डिटेल्स ऑफ मेल डिलीवरी सिस्टम. मतलब जो जिस तरह से आपकी मेल जानी है, जिस तरह से आपका लेटर ट्रांसफर होना है, यू आर ऑल्सो नॉट कंसर्न विद इट. Like basically you simply have to write the address at that envelope. मेन आपका टास्क क्या है कि आपने एड्रेस लिख देना है इन्वेलप के ऊपर. सेम इसी तरह से अगर हम लेयर्ड नेटवर्क में बात करें तो सबसे पहली लेयर है आपकी एप्लीकेशन लेयर. लेट्स सी हाउ इट्स वर्क. While chatting, you are concerned only about the messages without bothering about the kind of network. अब वो कह रहे हैं कि दो फ्रेंड्स, एग्जांपल उसने लेयर्ड नेटवर्क इस तरह एक्सप्लेन किया कि दो फ्रेंड्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैसेजेस एक दूसरे को भेज रहे हैं. तो अब आप क्या करोगे, आपने जब भी चैटिंग कर रहे हो, आप इर्द गिर्द से आप नेटवर्क की काइंड से कंसर्न नहीं हो कि कौन सा नेटवर्क है, तुम वाईफाई नेटवर्क यूज कर रहे हो या नहीं यूज कर रहे, मोबाइल डाटा यूज कर रहे हो. यू आर नॉट कंसर्न विद एनी ऑफ दैट नेटवर्क, काइंड ऑफ नेटवर्क that is wireless or wired. This is called application layer where you type a message and send on the network. अब वो कहते हैं ये क्या है, एप्लीकेशन लेयर है जिसके अंदर सिंपली आप मैसेज लिखते हो और अपना मैसेज भेज देते हो. You are not concerned with any of the type of, or you may say the kind of network. The address of the receiving device is provided in the form of header before message content. अब वो कहते हैं जो एड्रेस होता है वो कहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, हेडर में प्रोवाइड कर दिया जाता है. सबसे ऊपर आपका एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाता है जहां पर आपका जो मैसेज का कंटेंट जो होता है, मैसेज के में जो आपने लिखा होता है, मैसेज से पहले आपका दूसरी डिवाइस का, मतलब जहां पर आपकी डाटा आपका रिसीव होना है उस डिवाइस का जो एड्रेस है वो सबसे ऊपर लिख दिया जाता है ताकि आपकी वो प्रोवाइडेड जो आपका जो आपने एड्रेस दिया वहां पर आपका मैसेज चला जाए. सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ एप्लीकेशन लेयर. एंड यू कैन सी दैट हाउ जिस तरह वहां काम हो रहा है सेम इसी तरह नेटवर्क, लेयर्ड नेटवर्क में भी काम हो रहा है. नेक्स्ट,
You write sender and receiver information over the envelope and put it in the letter box. If the address is incomplete, you may get your letter back. If everything is fine, you simply trust on the postal system. The name of the specific person is mentioned who can open and read the letter. अब वो कहते हैं कि आप इन्वेलप में सेकंड पॉइंट उसने क्या रेज आउट किया यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि आप जो इन्वेलप होता है उसके ऊपर आप भेजने वाले का भी और जिस जो भेज रहा है और जिसने रिसीव करना है दोनों का नाम और एड्रेस लिख देते हो. मतलब आप अपना नाम भी लिख दोगे और आपने अपने फ्रेंड को भेजना है तो आप उसका नाम भी लिख दोगे. सो इफ द एड्रेस इज इनकम्प्लीट यू मे गेट द लेटर बैक. तो अगर आपने एड्रेस पूरा नहीं लिखा होगा, आपका उसका स्ट्रीट नंबर या हाउस नंबर कुछ भी नहीं आपने क्लियरली बताया होगा, यू विल गेट योर लेटर बैक. आपका पोस्ट ऑफिस बॉय जो होगा वो आपको लेटर वापस दे जाएगा कि योर एड्रेस इज इनकम्प्लीट सो वी कैन नॉट डिलीवर दैट एड्रेस दैट लेटर. If everything is fine, you simply trust on the postal system. अगर सारा कुछ आपका ठीक लिखा हुआ है, आपका एड्रेस वगैरह सही दिया हुआ है, तो क्या होगा, you may trust on the postal system कि आपका लेटर जो है वो रिक्वायर्ड आपका जो एड्रेस है वहां पर पहुंच जाएगा. And mainly you have to write the name of a specific person who can open and read the letter. जिसके लिए आपने लेटर भेजा आप उसका नाम जो है वो लाजमी लिख देते हो अपने एनवेलप के ऊपर. Now let's see in the terms of computer network model. Second layer, that is transport layer. Transport layer क्या कर रही है? Transport layer establishes connection between a client and a server. अब क्या करती है ट्रांसपोर्ट लेयर? क्लाइंट और सर्वर, जो कि हमने इस चैप्टर में पहले भी पढ़ा था. क्लाइंट सर्वर मॉडल जो था कि क्लाइंट होता है बेसिकली डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं और एक सर्वर आपका होता है. जो सर्वर होता है वो सारा आपको नेटवर्क का एक एरिया प्रोवाइड कर रहा होता है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हो. सो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? क्लाइंट और सर्वर के दरमियान एक कम्युनिकेशन बना देती है. मतलब क्लाइंट कौन है और सर्वर कौन है, इन दोनों के दरमियान आपका एक लेयर, कम्युनिकेशन लेयर बन जाएगी. It tries to send message, but if there is some error like your computer is disconnected from the network, then it informs the application layer. वो कहते हैं कि आप जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो बेसिकली करेगी ये कि वो दोनों सिस्टम्स के दरमियान में एक लिंक ऐसा क्रिएट कर देगी जिसके थ्रू आप अपने मैसेजेस एक दूसरे को भेज सकते हो. मगर क्या हो सकता है अचानक पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाए. You may cut off out or you may outrage of internet connection. आपका इंटरनेट कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट हो सकता है और कुछ भी हो सकता है डेली लाइफ में, रियल लाइफ में एनीथिंग कैन हैपन. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैन कट ऑफ और योर इंटरनेट कनेक्शन माइट नॉट बी स्टेबल. सो अगर इस तरह से कोई केस हो जाता है तो फिर क्या होगा कि आपका जो नेटवर्क के ऊपर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होगी या जो मैसेज पड़ा हुआ होगा वो जो ट्रांसपोर्ट लेयर होगी वो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर जो फर्स्ट लेयर थी आपकी उसको इन्फॉर्म करेगी कि अब ये जो मैसेज है ये मेरे पास है और ये आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता ड्यू टू द अनस्टेबल नेटवर्क. If the network is fine, then the application trusts the transport layer that the message will reach at its destination. अगर वो कहते हैं नेटवर्क फाइन है, नेटवर्क स्टेबल है, कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है, तो जो मैसेज होगा वो ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू आपके डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा. अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? इसके नाम से बड़ा सही क्लियर होता है. एप्लीकेशन में उसका रिक्वायर्ड एड्रेस आ गया था. ट्रांसपोर्ट में क्या हो गया कि उसने उस मैसेज के ऊपर ट्रांसपोर्ट करना है, बेसिकली मैसेज को फ्लोट करना है. तो ट्रांसपोर्ट लेयर मेनली ये काम कर रही है. At this stage, port number is added with message header for indication of specific application and destination. A port number is used to identify the application which can accept a message. अब यही बात उसने बताई जैसे साथ उसने टेबल में बताई थी कि आप उस पर्सन का स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिख देते हो. तो सेम इसी तरह यहाँ पर एक पोर्ट नंबर असाइन कर दिया जाता है हर मैसेज को. जो भी मैसेज होता है उसको एक पोर्ट नंबर असाइन कर दिया जाता है और पोर्ट नंबर जो है वो हेडर के सेक्शन में मतलब सबसे ऊपर लिख दिया जाता है. जैसे कि आपने एनवेलप की बैक साइड पे नेम लिखा था, सेम इसी तरह आपके मैसेज के साथ एक पोर्ट नंबर लिख दिया जाता है जिससे पता चलता है कि ये मैसेज कहां से आया है. नेक्स्ट इज नेटवर्क लेयर. A letter is moved to another city, Islamabad in this example by road or air. अब वो कहते हैं कि जो लेटर आपने भेज रहे हो आप अपने फ्रेंड को, इस्लामाबाद में वो रहता है, उसे आप भेज रहे हो. सो द लेटर यू आर फॉरवर्डिंग दैट मे पास थ्रू रोड और बाय एयर. हो सकता है बाय रोड वो लेटर भिजवाएं, उनका पोस्टल ऑफिस की गाड़ी लेकर जाए और मे बी बाय एयर वो लेटर आपका ट्रांसफर करे. Now moving towards the discussion about computer terminology, the layer which we are using here is network layer. अब network layer की हम यहाँ पर बात करेंगे.
A program running on the network layer moves the data to the other network. अब वो कहते हैं कि एक प्रोग्राम जो है वो नेटवर्क पर जो रन कर रहा होता है, इसके थ्रू क्या होता है कि आपको एक एरिया प्रोवाइड कर दिया जाता है कि जिसके थ्रू आपका डाटा दूसरे के नेटवर्क पर फ्लोट कर सके, एक आपका डाटा ट्रांसफर हो सके. सो अ चैट मैसेज इज ट्रांसफर टू अदर वाईफाई राउटर ऑफ योर फ्रेंड फ्रॉम वेयर इट इज डिलीवर्ड टू योर फ्रेंड और ही और शी कैन सी इट ऑन स्क्रीन. अब वो कहते हैं कि नेटवर्क लेयर बेसिकली क्या काम करती है कि जो आपके नेटवर्क जहां से मेन आपका आप नेटवर्क यूज कर रहे होते हो वहां पर एक आपको लिंक भेज देती है, या जो आपका मैसेज होता है वो वहां पर फ्लोट करती है और वहां से आगे आपका मैसेज जो है वो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है. मेनली अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हो तो जो वाईफाई का राउटर होगा सबसे पहले मैसेज उसके पास जाएगा और उस वाईफाई के राउटर से मैसेज आपके पास रिसीव होगा. दिस ऑल वर्किंग इज इन few nanoseconds, ने बहुत माइनर सेकंड्स के अंदर आपकी नेटवर्किंग होती है. इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द कनेक्शन एंड द स्पीड ऑफ योर नेटवर्क. आपके जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा उतनी जल्दी ये सारी प्रोसेसिंग होगी, उतनी जल्दी आपको मैसेजेस डिलीवर होंगे. Handling of letters is same either if they are letters or with photographs, ETH cards or containing text. अब वो कहते हैं letter में it might be anything, it might be photographs, it may be ETH cards or text, it can be anything that you are forwarding to your friend. A network handles all messages in the same way either if they are emails, pictures or voice messages. अब network में बात करें, अगर हम communication networks की बात करते हैं उसके अंदर वो कहते हैं कि जो आपने message forward करना है, it can be any email, it can be a couple of pictures, it can be a voice message, कुछ भी हो सकता है. Next is data link layer. Bikes or vans may carry out letters from letterbox to general post office. अब वो डाटा लिंक लेयर में बता रहे हैं कि अब जब आपका लेटर जो है वो इस्लामाबाद पहुंच गया, अब वहां से क्या होगा, वहां से आपका जो यहाँ से मैं बात कर रही हूँ लाहौर से जनरल पोस्ट ऑफिस में आपका लेटर पहुंच गया, लाहौर के जनरल पोस्ट ऑफिस में. अब वहां से इस्लामाबाद के जनरल पोस्ट ऑफिस में जब ट्रांसफर होना है तो हो सकता है कि बाय यूजिंग बाइक्स, बाय यूजिंग वैन्स, वो किसी भी तरह आपका जो लेटर है लेटर बॉक्स से जनरल पोस्ट ऑफिस तक ट्रांसफर करें. ठीक है, लेटर बॉक्स में डल गया. अब लेटर बॉक्स से आपका लेटर जब जनरल पोस्ट ऑफिस में जाना है तो किस तरह जाना है, दैट में उनकी कोई वैन की सर्विस भी हो सकती है, उनकी कोई बाइक्स की सर्विस भी हो सकती है. सो डाटा लिंक लेयर में क्या हो रहा है, डाटा लिंक लेयर सेंड्स अ मैसेज टू द सर्वर कनेक्टेड विद सेंडर. If you are chatting at home with a Wi-Fi connection, then the data link layer sends message from your computer to the Wi-Fi router. ये सेम वही बात जो अभी मैंने ऊपर आपको बताई है. अब डाटा लिंक लेयर में क्या हो रहा है कि आपका जो सेंडर है, ये जो मेन सर्वर है, ये मेन सर्वर आपका किसके साथ कनेक्ट है, सेंडर के साथ. जो आप मैसेज भेज रहे हो तो आपका आप किसके साथ कनेक्ट हो गए, सर्वर के साथ कनेक्ट हो गए. बिकॉज यू आर नॉट क्लाइंट, आप सर्वर के साथ कनेक्ट हो क्योंकि आप मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हो, यू आर सेंडिंग अ मैसेज. So if you are chatting at home with a Wi-Fi connection, then the data link layer. So if you are using a Wi-Fi connection at your home, so the message you are forwarding, that message will first go to your Wi-Fi connect router. आपके वाईफाई राउटर पे आपका मैसेज जाएगा और वहां से आगे जो है नेटवर्क पे जो भी आपका बंदा है या जो भी आपने नेटवर्क जिसके साथ कम्युनिकेशन लिंक क्रिएट किया हुआ है उस बंदे के वाईफाई राउटर पे जाएगा और वहां से उसे स्क्रीन पर नजर आ सकेगा. Next is for your letter delivery, there is usage of roads, train tracks and maybe airline. जब वो कहते हैं लेटर डिलीवरी करनी है, आपने लेटर भिजवाना है तो that may consist of, that may uses your roads. आप बाय रोड आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, that may uses your train tracks, बाय हो सकता है ट्रेन के थ्रू आपका पार्सल जा रहा हो, और मे बी एयरलाइंस, और में हो सकता है आपका एयरलाइन के थ्रू आपका लेटर जो है वो डिलीवर किया जा रहा हो. अब now moving towards the last layer of network model, that is physical layer. Physical layer is about the physical medium. नाम से पता चल रहा है इसका, physical means about the physical medium के जिसके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन हो रही है. is about the physical medium used in communication like cabling etc. मतलब आपकी जो cables हैं, wires हैं, कि आप वायरलेस communication यूज कर रहे हो, वायर विद वायर यूज कर रहे हो, जो भी आप जिस तरह से भी यूज कर रहे हो, आपका फिजिकल लेयर ये चीज आपको बताएगी कि जो आपका कम्युनिकेशन है इसके फिजिकल मीडियम क्या है, किस चैनल के थ्रू, किस मीडियम के थ्रू आप अपना डाटा ट्रांसफर कर रहे हो. Each layer adds some control information called header with the data received from the layer above it. अब वो कहते हैं यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन में they are saying that each layer adds some control information with header.
हर लेयर जो होती है वो एक हेडर इंफॉर्मेशन, हेडर एक असाइन कर देती है। हेडर में आपका एक एड्रेस लिखा हुआ होता है, या एक वो आपको बेसिकली मेन आपका वो बता देते हैं पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर मेनली आपका बता देते हैं कि ये पोर्ट नंबर है आपका, इस पोर्ट नंबर के थ्रू आपका जो डाटा रिसीव होना है दूसरी लेयर के साथ, हाउ द डाटा विल बी रिसीव। The actual content of message called payload is hidden inside the header at each layer. अब वो कहते हैं जो एक्चुअल आपका मैसेज होता है वो कौन सा होता है, वो उसे क्या कहते हैं, हम पेलोड कहते हैं। जो एक्चुअल आपका मैसेज का कंटेंट होता है, यह बात हमने पहले भी पढ़ी थी पेलोड की। जो एक्चुअल मैसेज होता है दैट इज नोन एज पेलोड, एंड दैट मैसेज और विद दैट पेलोड योर हेडर इज इंसर्टेड एट ईच लेयर। हर लेयर पर आप एक अपना हेडर डिजाइन कर देते हो। लाइक अ लेटर इज हिडन इनसाइड एन इनवेलप, सेम उसी तरह एग्जांपल उसने दी है कि जिस तरह से आपका जो लेटर था वो छुपा हुआ था एक इनवेलप के अंदर, सेम इसी तरह एक हेडर का एड्रेस दे देते हो, उस हेडर के एड्रेस के अंदर आपका मैसेज लिखा हुआ होता है। दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कैप्सूल से ये लफ्ज निकला, कैप्सूल की तरह से। अब एक कैप्सूल होता है डेली लाइफ एग्जांपल की या मेडिसिन की मैं बात करूं तो एक कैप्सूल होता है, उसके अंदर आपकी जो मेडिसिन होती है वो फिल हुई हुई होती है, उसके अंदर वो पाउडर होता है या जो भी होता है मटेरियल होता है वो सारा फिल आउट हुआ हुआ होता है। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब यही होता है कि ऊपर से कुछ और चीज नजर आए और अंदर से आपकी एक्चुअल चीज जो है वो नजर आए। तो जो कैप्सूल होता है उसके अंदर ऊपर की जो लेयर है उसने तो कोई काम नहीं करना, बेसिक काम अंदर के सॉल्ट का है। सो यहाँ पर जो अंदर जो सॉल्ट है वो आपका मैसेज है, और जो ऊपर लेयर एक लगी हुई है वो आपका हेडर है। ओके, so this is known as encapsulation. So this was the discussion about computer network models. अब ये 5 layers हैं, that is one of the most important long question. अब आपने अपने homework में भी यही करना है कि आपने you have to write a detailed note on communication network model. अब ये जो हमने पढ़ा है ना कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल, इसकी आपने डिटेल आपने इसका आंसर लिखना है अपने रजिस्टर्स पर। आपने 5 लेयर्स जो है आपने इसमें पोस्ट ऑफिस के एग्जांपल को एक्सप्लेन नहीं करना, आपने बेसिक इन 5 लेयर्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करना है, डिटेल एक्सप्लेन करना है, बुलेट्स में आपने इनका आंसर लिखना है। इसी को पढ़ते हुए जो हमने आज टॉपिक रीड आउट किया है इसी को देखते हुए। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल्स इन टीसीपी आईपी सूट। अब वो कहते हैं कि आपके टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स के अंदर मॉडल के अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट तरीके से। हमने प्रोटोकॉल पहले भी पढ़ा था, दिस इज द वे ऑफ डूइंग द कम्युनिकेशन। डिफरेंट तरीके से आपका जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। एवरी प्रोटोकॉल इज डिजाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। हर प्रोटोकॉल अपना एक अलग काम कर रहा होता है। some of the most widely used application layer protocols are discussed below. अब जो सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल यहाँ यूज होते हैं आपकी आप जनरल लाइफ में यूज करते हो वो यहाँ पर उसने कुछ एक्सप्लेन किया। नंबर 1 इज FTP। FTP stands for फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब फाइल का वर्ड आ गया तो बेसिकली क्या होगा, ये प्रोटोकॉल क्यों यूज हो रहा होगा, आपकी फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए। File transfer protocol is the standard TCP/IP protocol which is used for the purpose of transferring files from one computer to another. For example, if you want to transfer a document file to a remote computer, then you can use this protocol as shown in the figure 3.14. वो कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP stands for file transfer protocol. This protocol is generally main purpose of this protocol is used to transfer file from one computer to another computer. आपने किसी भी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करनी है, आपने उसे फाइल्स अगर ट्रांसफर करनी है तो कौन सा प्रोटोकॉल आपका एक्टिव होगा, आपका FTP का प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपका फाइल जो है वो दूसरे सिस्टम के पास लेकर जाएगा। नेक्स्ट इज HTTP। अब ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, you have already discussed about HTTP in detailed description in class 7 also. HTTP, Hypertext Transfer Protocol. This is the full form of HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Is a protocol used by World Wide Web (WWW) to transfer web pages between a client and a web server. अब क्लाइंट और वेब सर्वर और क्लाइंट के दरमियान जब आपकी वेब पेजेस आपके ट्रांसफर होने हैं तो उसके लिए जो आप इंटरनेट का प्रोटोकॉल यूज करोगे दैट इज HTTP। जब भी आपने इंटरनेट से कनेक्ट होना है, वर्ल्ड वाइड वेब के साथ आपने कम्युनिकेट करना है, आपने वेब पेजेस ओपन करने हैं, तो आपका कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा, आपका HTTP का प्रोटोकॉल काम करेगा।
जब भी आप कोई न्यू वेबसाइट ओपन करते हो, आप देखते हो कि उसके ऊपर आपको सर्च बार में लिखा हुआ नजर आता है HTTP और बैकस्लैश होती है, कॉलन होता है और 2 बैकस्लैश होती है और उसके बाद आपका आगे से एड्रेस लिखा जाता है। तो ये कौन सा प्रोटोकॉल आपका एक्टिव होता है? जब भी कोई वेबसाइट आप ओपन करते हो, आपका HTTP का प्रोटोकॉल ओपन होता है, दैट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। A web server is also called an HTTP server. वेब सर्वर जहां से आपके इंटरनेट की मेन साइट्स ओपन होती हैं, उनको हम HTTP सर्वर भी कहते हैं। We use this protocol while browsing internet. For secure data transfer, we use HTTPS. अगर secure data transfer करना है हम, तो हम एक प्रोटोकॉल, उसमें S का लफ्ज एक लग जाता है आगे, secure data हो जाता है आपका इससे, hypertext transfer protocol और secure, इसके थ्रू आप अपना डाटा सिक्योर डाटा ट्रांसफर कर सकते हो। Next is SMTP. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, is a standard protocol to transmit emails. अब आपने अगर emails किसी को forward करनी है, तो अगर कोई email भेजनी है, तो कौन सा प्रोटोकॉल आपका काम करेगा? SMTP. SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. So this was our today's lecture. आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। 2 टॉपिक्स आज हमारे हो गए हैं। एंड योर होमवर्क मैंने आपको पहले भी बता दिया, आपका होमवर्क होगा कि यू हैव टू राइट अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स, 5 लेयर्स, उनको बुलेट में आपने एक्सप्लेन करना है। एंड दीज 3 आर द शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट डू यू नो अबाउट FTP, what is HTTP and what is the purpose of SMTP? ये 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। Okay, students, now you may ask the questions. Please raise your questions. No questions? Okay, Amna, everything is quite clear, I think so. टीचर, Yes. जो आपने अभी हमें कहा कि हमें 5 लेयर का क्वेश्चन करना है, टीचर वो जी। हम अलग अलग हेडिंग से के करेंगे? जी बिल्कुल, exactly, but in one long question. ओके। Yes. तो टीचर कोई मेन हेडिंग भी होगी ऊपर? मेन